Ever wondered how much safer your work at height operations could be? Imagine a world where every potential hazard is detected before it becomes a problem. Meet Tracker AI's smart PTZ camera system. This isn't just any camera, it's a game changer in work at height safety. Safety is paramount, right? It's the foundation of a productive and happy workforce. Despite stringent regulations, accidents still happen. Traditional methods often fall short in preventing these incidents. Enter Tracker AI's smart PTZ. This advanced system is designed to fill the gaps left by outdated safety measures. Tracker smart PTZ cameras deliver unmatched oversight so you can spot hazards before they become accidents. Offering 24/7 monitoring, it detects work at height safety hazards instantly, no matter the time of day or night. Think about it. Real-time monitoring, automated alerts and even fall detection. It's like having a safety manager who never blinks. Real-time alerts trigger immediate action, ensuring that potential dangers are addressed before they escalate. Automated surveillance significantly reduces human error, making your work site safer and more efficient. It even detects PPE and welding work compliance, ensuring that all workers are properly equipped. Ensure every worker goes home safe. That's the ultimate goal, isn't it? Ready to elevate safety? Stay safe, stay smart. With Tracker AI, you're not just upgrading your equipment, you're upgrading your entire safety culture. The Tracker Smart PTZ camera features advanced AI algorithms that are constantly learning and adapting to new safety challenges. With 360-degree rotation and high-definition video, it covers every angle, leaving no blind spots. You can decide which areas to cover, what to detect in each area through a simple online procedure without ever leaving your seat. Through the setup, you can monitor what is happening on the ground in real time remotely. In a recent case study, a manufacturing plant reduced accidents by 40% after implementing our system. Features include night vision, advanced monitoring for PPEs, work at height and welding activities, including real-time analytics, making it a comprehensive safety solution. Our team of experts ensures the highest quality and reliability, constantly innovating to meet your safety needs. Plus, our dedicated support team is here to assist you 24/7, ensuring that you get the most out of your investment. Join the revolution in safety with Tracker AI's smart PTZ camera system. It's time to take your safety measures to the next level. Visit tracker.live to learn more and get started today. Together, we can create a safer, smarter future for everyone. Welcome to another episode of Hakla Podcast. Today, we are asking a bold and uncomfortable question. Do we really want to improve in process safety, or it is just an eyewash? India has witnessed some of the world's most devastating industrial accidents, from Bhopal to recent chemical plant accidents. Every time there is a promise of change, new rules, new audits, and new commitments. But decades later, the same patterns still surface: compliance on paper, shortcuts in practice, and safety systems treated as tick box exercise. To explore this with us, we have Mr. Sukanto Das, a seasoned process safety leader with over a decade of experience. He is a TUV certified HAZOP and LOPA leader, currently the PSM lead at Johnson Matthey. His journey across gives him a unique perspective on whether we are truly improving or just pretending. So let's just get started today. Thank you, sir, for joining us on this podcast. Thank you very much, Amber. First of all, good morning for you. I think you are in UK right now. So, Yes, sir. yeah. Can I speak in Hindi? Actually, I want this message to be portrayed through shop floor, Absolutely. और every worker should listen. तो मैं इसको हिंदी में कन्वर्सेशन चाहूँगा. Yes, sir. जैसा कि आपका जो ये टॉपिक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बहुत दिनों से मैं इस पर बात करना चाहता था कि क्या इंडिया में सचमुच हम प्रोसेस सेफ्टी इंप्रूव करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या फिर ये केवल एक आंखों का धोखा है. Hmm. So yes, I'm very excited
for this session. Please start. Okay, sir. So let's get started. So, based on your journey across multiple chemical companies, do Indian industries genuinely want to improve process safety, or it is more of a show for regulators and auditors? दिस क्वेश्चन एज जैसा कि आप एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये दिखने में तो बहुत इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट्स नॉट दैट क्लियर। ये इस तरह से है कि जैसे कि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो दुनिया से या इंडिया से, लेकिन कैसे हो वो कोई नहीं बताता, या कैसे करना है वो कोई नहीं जानता। तो इसी तरह से प्रोसेस सेफ्टी, क्योंकि कोई नहीं चाहता, कोई कंपनी का मालिक, कोई सीईओ, कोई ओनर ये नहीं चाहता कि उसके यहाँ कोई दुर्घटना घटे, किसी की मृत्यु हो, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। बट उसको करना किस तरीके से है, उसमें जो है गैप है, और इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है। पहली चीज, बीइंग और डेवलपिंग कंट्री, हमारे लिए कोई भी इंडस्ट्री के लिए सस्टेनेबल बनना बहुत जरूरी है, Right. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फॉर एनी बिजनेसमैन ये एक क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट चेक करना, प्लस माइनस चेक करना ही उनका होता है। अगर हम प्लस में हैं तो ग्रो करेगी, Right. नहीं है तो एट वन टाइम हमको कॉल लेना पड़ेगा और बंद होना पड़ेगा। Right. Right. नाउ इंडियन इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री स्ट्रगल कहाँ करती है, या फिर कह सकते हैं कि दिक्कत कहाँ, क्यों ग्लोबल कंपनीज जो एमएनसीज है वहाँ पे अच्छा प्रोसेस सेफ्टी है, और एज इन इंडिया इंडियन कंपनीज में कम है, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, जहाँ पे हमारा एक एक रुपए, डेढ़ डेढ़ रुपए के लिए हम चाइना से compete करते हैं। Right. वहाँ पे उतनी स्ट्रिंजेंट प्रोसेस सेफ्टी लाना, क्योंकि प्रोसेस सेफ्टी एक अपने आप में पूरा पूरा यूनिवर्स है, आप कह सकते हैं। तो पहली सबसे बड़ी चीज है सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन, जहाँ पे क्योंकि कंपनी तब तक चलेगी जब तक प्रॉफिट में होगी, ये बहुत बहुत बेसिक चीज है। एंड प्रोसेस सेफ्टी जो कि अभी आया है मार्केट में, लाइक लास्ट 10 ईयर्स से इसमें जो है मैच्योरिटी काफी बढ़ी है। 2010 से पहले, 2010 के बाद इंडियन केमिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस सेफ्टी को लेकर काफी मैच्योरिटी है, नो डाउट। लाइक बड़ी कंपनीज, मिडिल कंपनीज भी इम्प्लीमेंट करना चाहती है, दिल से करना चाहती है, बट कुछ चीजें हैं जो उनको रोक रही है। उसमें सबसे पहली चीज रेगुलेटरी, कोई रूल नहीं। Okay. ऑब्वियसली जब एक डंडा मारने वाला होता है तो कंपनीज ऑटोमेटिकली करती है। राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली प्रोसेस सेफ्टी इंडिया में अभी तक रेगुलेटरी लॉ नहीं, Okay. कुछ कुछ पार्ट्स में है, और जहाँ लूप होल्स है, एंड लूप होल्स के कारण जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाना मुश्किल हो जाता है। आयरनी देखिए, प्रोसेस सेफ्टी की शुरुआत अगर हम बोले तो इंडिया के जो सबसे बड़ा इंसिडेंट है, दैट इज भोपाल इंसिडेंट। Yes. वहां से उससे जो है यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी। Right. Right. जब वहां पे हुआ तो अमेरिका, यूएस ने सोचा कि ये चीज कभी दूसरी जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी रिपुटेशन खराब होती है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने 1991 में सीसीपीएस की स्थापना की, विच इज सेंट्रल फॉर केमिकल प्रोसेस सेफ्टी। Okay. और उसी के बेसिस पे अदर यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपने वहां पे प्रोसेस सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी बाय लॉ बनाया, Okay. बट इंडिया में नहीं बन पाया, जहाँ पे ये दुर्घटना घटी। Right. 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 तो पहली चीज रेगुलेटरी कंपल्सन का ना होना। दूसरा, प्रोसेस सेफ्टी इंप्लीमेंट ना करने के पीछे है कि आपके पास कॉम्पिटेंट पीपल नहीं है, Okay. लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। अब लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास इंटेलिजेंट लोग नहीं। इंडिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ बुद्धा। द थिंग इज दैट ट्रेनिंग की कमी है, बेसिक ट्रेनिंग की कमी है, एंड देन प्रोसेस सेफ्टी एज ए कोर्स इन एकेडमिक्स, उसकी कमी है। वो बहुत अभी अभी कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन में इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस सेफ्टी को लाया गया है, Yes. बट स्टिल वो अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। Okay. तो ये दो चीजें जो बताती हैं कि क्यों, मतलब एक है
दूसरा जो चीज जो मैं देखता हूँ कि मैनेजमेंट कमिटमेंट, अभी आपने सुना होगा लास्ट 10-15 दिन में बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। जिसमें से एक बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उस कंपनी ने ड्यू पॉइंट को हायर किया हुआ है। ड्यू ओके। पॉइंट बड़ी कंपनी है, DFS हाँ, प्लस बोलते हैं, और करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वेरी बिग कंपनी। लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बाद भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है जादू की झप्पी। वो अंडरलाइंग जो इश्यूज है उसको कभी एड्रेस या देखना ही नहीं चाहते, या अगर वो देखेगी तो शायद वो सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बना पाएगी। राइट, राइट, राइट। तो वो बहुत ही डेलिकेट सी चीज है। तो ये कमिटमेंट, आपने पैसा ले दिया, आपने एक बहुत अच्छे प्रोसेस सेफ्टी पर्सन को लेके हायर कर लिए, आपने कंसल्टेंसी को लेके आ गए, लेकिन जब वो आते हैं और जब कुछ करने को बोलते हैं तो वो करने में जो पैसे खर्च होंगे राइट, वहां पे फिर आ जाती है, क्योंकि वो खर्चा करेंगे तो शायद आपके बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रहेगा। राइट, तो ये बहुत, क्या बोलते हैं ना, कैच 22 सिचुएशन है। चाहते भी हैं, करेंगे भी, अगर करेंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, नहीं करेंगे तो इंसिडेंट हो जाएगा। राइट, तो ये प्रॉब्लम। गॉट इट। दूसरी चीज, अभी जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, मिडिल कंपनीज है, वो पुरानी है, एटलीस्ट 25-30 साल तो पुरानी है, और कुछ कुछ 50 साल भी पुरानी है। ठीक है। अभी क्या होती है कि उसके एसेट्स जो होते हैं, इक्विपमेंट एंड मशीनरीज होती हैं, वो पुरानी हो चुकी होती है, यस, यस, या उस समय जो बनी हुई सिस्टम है वो बहुत कंजेस्टेड सिस्टम में बना होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, कम जगह में ज्यादा बनाओ, ज्यादा बनाओ, ज्यादा प्रोडक्शन करो, तो वो प्लानिंग नहीं होता। जैसे कि अभी अगर आप नए प्लांट बना रहे हो तो बहुत सारी स्टडीज होती है, लाइक कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस बोलते हैं, ओबरा स्टडी बोलते हैं, कि जिसके बेसिस पे कि अगर कोई इंसिडेंट हो तो ऑपरेटर कहाँ बैठना चाहिए या फिर कंट्रोल रूम कहाँ होना चाहिए, वो एनालिसिस करके बनाते हैं। बट पुराने जो बने बनाए हैं, राइट, उस समय वो थिंकिंग नहीं थी। तो अब वो प्लांट तो बनी है, अब उस प्लांट को पूरी डिमोलिश तो करेंगे नहीं मैनेजमेंट, यस, क्योंकि वो फिर सस्टेनेबल नहीं रहते। तो वो क्या करते हैं कि किसी चलो प्रोसेस सेफ्टी खेलते हैं, तो प्रोसेस सेफ्टी को ले आते हैं। अब प्रोसेस सेफ्टी वाला आके बोलता है, भाई ये वाला टैंक बाजू बाजू में है, नहीं चलेगा। तो क्या करें, नहीं चलेगा तो चलाओ, कुछ और करो, SOP बनाओ। तो वो समझौता करना पड़ता है। एंड अगर मैं एक मालिक हूँ, ओनर माइंडसेट से, तो मैं भी उस डिफिकल्टी को समझ सकता हूँ। राइट, राइट, तो करे तो क्या करें, आप बताइए। यस सर, वेरी ट्रू सर। बट वन थिंग जो आपने बताया कि हमारे पास अभी लॉज रेगुलेशंस भी उतने स्ट्रांग नहीं है इंडिया में, दैट इज स्ट्रांग नहीं, प्रॉब्लम। अभी वहां पे आके अगर बोले फैक्ट्री इंस्पेक्टर कि नहीं चलेगा, कंपनी बंद करवा देंगे, तो फिर उनको करना ही पड़ेगा। राइट, तो जहाँ पे मैं अपने बिजनेस, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे बिजनेस चलाना, और देख रहा हूँ कि अगर ये नहीं भी करूँ तो चलेगा, यस, तो मैं शायद नहीं भी करूंगा। यस, यस, लेकिन बात है कि भैया करना ही है, तो मैं फिर करूंगा, यस, कहीं और प्रॉफिट मार्जिन तलाश करने की कोशिश करूंगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो वो चीज जो है राइट सर। दिक्कत हो जाती है। तो सर, दूसरी सबसे बड़ी हाँ, चीज, गो नहीं, अहेड सर। दूसरी बड़ी चीज जो आजकल के इंडस्ट्री में देखते हैं कि टर्न आउट जो होता है, एम्प्लॉयज का टर्न आउट जो होता है, वो काफी है। ओके। और टर्न आउट हमेशा उनका होता है जो कि थोड़े अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा जो नहीं होते वो अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि वो वहां पे सेटिस्फाइड है, जॉब सेटिस्फेक्शन है तो है। राइट, लेकिन अगर आप टर्न अराउंड देखेंगे लोगों का, जो जॉब स्विच बोलते हैं, उसकी काफी काफी ज्यादा है, एक जगह से दूसरी जगह तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस है उसकी गैप हो जाती है, क्योंकि जो जाता है और उसकी जगह जो आता है, वो उसको स्टेबलाइज होने में 1 साल 1.5 साल लगते हैं, जब जाके वो कुछ एडिशन दे पाता है। तो करेक्ट, करेक्ट, वो एक बहुत बड़ा इशू राइट सर। तो है।
Sir, can you share some typical eye wash practices that you might have seen in organization when it comes to PSM? आप नौकरी नहीं करने देंगे लगता है, या दूसरी जगह जाने नहीं देंगे। In general, sir, in general. इन जनरल जो जो मैं देखता हूँ कि आई वॉश नहीं बोल सकते, आई वॉश बोल सकते हैं, या फिर मजबूरी बोल सकते हैं यार, क्या करें कि जो सपोज करिए हम हजार्ड स्टडी कराते हैं, हजार्ड स्टडी इसको हैजॉब भी बोलते हैं। Yes, sir. हम लोग इंडियन एज ए इंडियन इंडस्ट्री इन जनरल हजार्ड स्टडी कराने में बहुत माहिर है, बट उसके कंप्लाइंस मतलब उससे जो रिकमेंडेशंस आते हैं उसकी फुलफिल में बहुत वीक है। Right, right. चलो फुलफिलमेंट तो बहुत बड़ी आ गई, बहुत बड़ी मैच्योरिटी वाली बात कर दी मैंने, लेकिन हजार्ड स्टडी होने के बाद क्या होता है कि उसका कम्युनिकेशन जो है टू द शॉप फ्लोर होना चाहिए, टिल द शॉप फ्लोर के सारे लोगों को पता होना चाहिए कि हमने स्टडी कराई और ये हजार्ड निकल के आया, आप उस हजार्ड में काम कर रहे हैं। Right. तो वो वहां पे गैप हो जाता है। केवल वो हजार्ड स्टडी कराया, एक एक करवाना है, रूल है तो करवा लिया, खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज। Right, right, right. तो ये एक बड़ा है। और इस इन सब के पीछे एक रीजन है, सबके पीछे रीजन है रिसोर्सेस की कमी। Okay. एक ही बंदा हजार्ड स्टडी भी करे, वो कम्युनिकेशन भी करे, ट्रेनिंग भी करे, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करे, ये एक्सपेक्टेशन होती है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा से ही प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, चाहे सेफ्टी वर्क प्लेस सेफ्टी मैनेजमेंट हो, कोई भी, दोनों सेफ्टी मैनेजमेंट को लाइन फंक्शन बनाने पे हमेशा जोर देता हूँ। Okay. इट्स लाइन फंक्शन सोर्स। A process safety guy or workplace safety guy should be in the advisory role only. Whereas in many companies, they hire to do the process safety work. ये process safety वाला बंदा है, अब यही process safety का काम करेगा। प्रोडक्शन वाला तो प्रोडक्शन निकालेगा, उसका काम प्रोडक्शन निकालना, प्रोडक्शन निकालेगा। तो ये जो दो डिटैचमेंट्स हैं, थियोरीज हैं, थॉट प्रोसेस है, ये सबसे बड़ा गैप है प्रोसेस सेफ्टी को इम्प्लीमेंट, या बोल सकते हैं कि आई वॉश काइंड ऑफ थिंग। Right, right, right. मैंने अपनी करियर की जर्नी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से की थी इन ईयर 2006 Okay. एज ए जीईटी, एज ए केमिकल इंजीनियर। एंड 2007 में उन्होंने डू पॉइंट को हायर किया था टू इम्प्लीमेंट प्रोसेस सेफ्टी। Right. एंड बिफोर हायरिंग डू पॉइंट, 1 साल 1.5 साल पहले से उन्होंने हायरिंग चालू कर दिया था एम्प्लॉयज का, Okay. क्योंकि जानते थे जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन चालू होगा हमें रिसोर्सेस लगेंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। Right, right, राइट नाउ इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, एज ए इंडस्ट्री में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लोगों को प्रोसेस सेफ्टी चाहिए, सुना है बहुत अच्छी चीजें, उसके आने से दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी, चलो 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 हायर करते हैं। बट उसको लेने के पीछे और क्या क्या काम करना होता है वो उनको पता ही नहीं। right. तो उससे क्या होता है, प्री मिच्योर काइंड ऑफ थिंग, इट्स लाइक नोटबंदी, कि बंद कर दो फिर देखा जाएगा क्या होगा। क्या होगा? Yes. तो वैसा नहीं होता। राइट सर। तो ये आजकल नया बज़वर्ड जब मार्केट में आता है तो कंपनी वांट टू टेक फुल यूज ऑफ इट, बट दे डोंट नो द हाँ, स्ट्रैटेजी हाउ दे विल मेक यूज ऑफ इट। तो बेसिकली जो सीईओ होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनको उनको रात को, अभी जितना अवेयरनेस बढ़ा है, व्हाट्सएप है, वीडियोस है, उनको पता है कि अगर कोई दुर्घटना हो का नाम यस। एट अ सर्टेन लेवल क्या होता है कि पैसा तो मायने नहीं रखता जितना इज्जत रखता है। राइट, राइट। तो वो रात को सच में सो नहीं पाते। इट्स वेरी ट्रू। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ दुर्घटना ना, कोई नहीं चाहता। तो वो जिससे कि कैसे रुकेंगे, तो देखते हैं कि बाहर की कंपनियां प्रोसेस सेफ्टी खेलती हैं, चलो चलो किसी को हायर करते हैं, पैसा दे देंगे, आ जाएगा और हम सेफ हो जाएंगे। राइट। तो ये माइंडसेट है। बट ये एक जो है पूरा एक सिस्टम है जिसको डेवलप करने के लिए ईयर्स प्लानिंग की जरूरत है, राइट। जहाँ पे बहुत बड़ा गैप। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सर।
So, sir, like you gave example of Reliance, who were proactive in developing Exactly. people to apply the PSM in their company. So, how do you distinguish between leadership or leaders, who truly wants process safety and the ones who just do it for audits and town halls? वो तो ऑब्वियसली आप जब आप किसी कंपनी के गेट से घुसेंगे ना तभी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली what is the status of safety or maturity of safety or what they want. Okay. So companies, many companies, I don't want to give the name, but Yes. they have like they shut their plant for several months when they found that one monkey died in their premises. Okay. So they thought that there might be some release of gases. So and where it is from where it is released, why it is released, and what should be our safeguard कि ये आगे दोबारा ना हो. तो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उन्होंने प्लांट को बंद रखा. Yes. Yes. तो $1 million का लॉस हुआ. बट उनके लिए था कि ऑन द ग्राउंड ऑफ सेफ्टी और ऑन द ग्राउंड ऑफ लाइफ जीरो टॉलरेंस. Right. 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 वेयर इज इंडियन केमिकल इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्रीज में इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं है. मैं उनको गलती भी नहीं मानता कि अगर इस तरह बंद रखेंगे 6 महीने तो कंपनी बंद ही हो जाएगी. Yes. 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 फिर उनके जो यहाँ काम करने वाले कहाँ जाएंगे. तो Right. ये बहुत डिफिकल्ट सब चीज है कि कैसे करें. अगेन मैं बार बार यही ट्रीट कर रहा हूँ कि कोई भी जो लीडरशिप है in the core of their heart they don't want any incident, they don't want anyone get hurt. Yes. बट उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, कितना रिसोर्सेस, कितना बजट रखें और कितना हमारा टॉलरेंस होना चाहिए, वो अगेन उसके बनाए हुए प्रोडक्ट की मार्जिन, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का कितना शेयर वो सेफ्टी पे खर्च करना चाहते हैं Yes. उसके ऊपर डिपेंड करता है. Right, sir. और सर आई वाज आल्सो थिंकिंग कि जैसे इफ गवर्नमेंट implements good regulatory standards and they give हाँ. subsidies to companies in case there is an accident and they have to keep the plant shut for few weeks or months, the government should help them, so that they can have good measures in place. Exactly. It's like if there is a regulatory compliance, and if you are good in that regulatory compliance, then there is some types of subsidies so that their product becomes sustainable, Right, right. and then that margin should go to again in the implementation of the safety part. Yes, yes, yes. So yeah, very good idea, Amber. Right. But yeah, you know how regulatory laws and the implementation part and the auditing part, there are some always a catch. राइट सर. तो आइडिया एक होता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अलग होता है. तो Exactly. So that is the sad part. But yeah, we are we are the person who can make the difference. So रोने से नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा. right, right, right. So sir, like what are the biggest barriers preventing companies to move beyond this eyewash? So like you mentioned, cost can be a factor, culture can be a factor, regulatory gaps are the factors. So like if you want to prioritize, like first हम Hmm. step one, priority two, priority three ऐसे करके, ताकि कंपनियां So आई वॉश ना करें. ob- obviously priority one is to have some kind of regulatory. मैं आप मेरे पोस्ट में भी हमेशा देखते हैं, इन बिटवीन मैं हमेशा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है अपील करता रहता हूँ कि प्रोसेस सेफ्टी को इंडिया में बाय लॉ, इस वीडियो के माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट को इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी बनाया जाए. ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. जैसे ही ये स्टेप आएगा बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी. मैनेजमेंट कमिटमेंट, बजट एंड ऑल दोस थिंग्स अपने आप आ जाए. Right, right, क्योंकि इट्स ऑलवेज टॉप ड्रिवन अगेन बाय रूल, बाय लॉ तभी हो पाए. right. यूएस, यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज में क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे भी लॉ है. Right, right. ऐसा नहीं है वो. बोलिए. And then fine भी बहुत ज्यादा है. If they don't comply, there's a big fine.
फाइन ऐसा फाइन है कि कंपनी बंद हो जाए, राइट तो उनको डर हमेशा रहता है। राइट राइट राइट। यहाँ पे भी फाइन है जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, बट अगेन वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक पार्ट है प्रोसेस सेफ्टी का। इन द होल गैमेट ऑफ द शो इट्स यस ओनली लाइक 10-20%, राइट वेरी राइट। सिलेक्टिव। तो एक comprehensive sort of rule होना चाहिए with the help of like governing जो केमिकल इंडस्ट्रीज के पायनियर्स है उनके साथ बैठ के एक रूल बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक अलग कमिटी बनाए जहाँ पे प्रोसेस सेफ्टी टाइप ऑफ डिपार्टमेंट हो, जो कि पूरे इंडिया में जितनी भी केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मा ऑर्गेनाइजेशन है, फर्टिलाइजर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर नजर रख पाए विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस सेफ्टी कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू। राइट सर। तो डेफिनेटली इट विल डू द वंडर। अदरवाइज आज सुबह ही मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक इंसिडेंट आया है, कोई भरूच में एक इंडस्ट्री है एंड भीषण आग लग गई। ओके स्टिल कैजुअलिटी का पता नहीं, बट द वीडियो जिस तरीके का मैंने देखा इट्स हॉरिबल। राइट। तो एंड सर ये इट्स तो वेरी मेरे पेनफुल। लिए भी इट्स अ शॉकिंग न्यूज़ कि हमारे पास लाइक कंट्री में भी प्रोसेस सेफ्टी के रिगार्डिंग रेगुलेशन इतने वीक हैं, यू नो, because we वीक are one of वीक the fastest developing countries in the world, and we are, and chemicals are very dangerous, you know, it's not something simple, right? Because we have seen Bhopal can lead to so many casualties. एग्जैक्टली। और भोपाल जो कि ज्वलंत उदाहरण है, मतलब नॉट ओनली इंडिया में उसका उदाहरण दिया जाता है, वर्ल्ड वाइड। क्योंकि मैंने Yes. बहुत सारे एमएनसी में काम किया, तो वहाँ वो उसको एज ए केस स्टडी बताते Right, right, right. हैं। स्टिल मैं लाइक आज से 3-4 साल पहले गया था वहाँ पे भोपाल में, यूनियन कार्बाइड में भी मैंने विजिट किया था। स्टिल वो बंद पड़ी हुई है Right. एंड द डेंजर इज दैट माउथ वॉलिंग नहीं हुआ है। वो जो पूरी स्ट्रक्चर है, टैंक्स है, उसको क्लीन नहीं किया गया, अभी भी ऐसी ही पड़ी हुई है। Okay. वो लैंड कंटामिनेटेड है, तो हम अभी भी डेंजर में हैं, क्योंकि Right. केस चल रहा है। तो वो सब के Okay. कारण वो पूरी चीजें अभी भी स्टिल कंटामिनेटेड है। आपने अगर रशिया में जो इंसिडेंट हुआ था, दैट इज चार्बोनिल आई थिंक, करेक्ट, Chernobyl, हाँ, Chernobyl जो। चेर्नोबिल, चेर्नोबिल। तो उसका अगर देखेंगे तो उधर उन्होंने पूरा डोम बना दिया है, सो दैट रेडिएशन बाहर ना जाए, क्योंकि Right. उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते, और उसके रेडिएशन का कुछ लाइफ टाइम ही कुछ 200-300 साल है, वहां तक होता रहेगा। Right. तो उन्होंने पूरा मेटल का डोम बना के उसको कवर अप किया हुआ है। तो कुछ इधर नहीं है, क्योंकि हम स्टिल और अगर आप देखोगे अभी उसके आसपास जो पॉपुलेशन है, पूरी Yes. सिटी डेवलप हो गई है। अभी वो Okay. बीच में आ गया है शहर के, Okay. अभी कुछ होता है तो उससे बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा 1984 Right, right, right. 84। Yes, right. अब तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है एंड दे क्लस्टर्स आ जाते हैं पूरे एकदम करीब आ गए हैं, हाँ हाँ। रोड के इस तरफ कंपनी है, उस तरफ पूरी बस्ती है। Yes, yes, yes. Very, very dangerous. Yes, sir. Okay. So, sir, coming to the technology part, so how do you see AI, IoT, and predictive analytics transforming the PSM in India and helping companies to reduce eyewash? ऑब्वियसली एआई बहुत हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हम लोग काम भी कर रहे हैं जिसमें जो कैमराज है वो डिटेक्ट करती है कि लोग जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए। Right. तो अगर वो नहीं पहने तो अलार्म देती है, जो कि देख सकते। तो इस तरीके का एक इंस्पेक्शन विजुअलाइजेशन बढ़ जाता है। ये तो चलिए एक हो गया कि गलती पकड़ने वाली चीज होगी, बट एआई का बहुत बहुत ज्यादा टूल यूज हो सकता है जहाँ पे हम रिमोट ऑपरेट करने वाली बात करते हैं। Right. अभी ऐसा हो गया है कि आपको प्लांट में रहने की भी जरूरत नहीं है, आप घर से बैठ के भी प्लांट ऑपरेट कर सकते हैं, या एक हेलमेट है जिसमें आप पूरी विजुअल करके पूरा डेटा फीड कर सकते हैं। Right. तो टेक्नोलॉजी बहुत है मार्केट में, और जो कि हेल्पफुल है, क्योंकि जितना हम ह्यूमन को हजार से दूर करेंगे, ह्यूमन के लॉस होने का टेंशन कम हो जाएगा। Correct. देखिए पैसा, इक्विपमेंट सब वापस आ जाएगा, बट लाइव वापस नहीं आएगा। Yes. तो अगर हम लाइव को, ह्यूमन को दूर करें, ऑब्वियसली सेफ्टी बढ़ेगी। और प्लस
ह्यूमन का एक जनरल टेंडेंसी होता है ह्यूमन एरर का। Yes, yes, absolutely. मनुष्य मात्र ही गलती होता है, ये तो लिखा है। तो जितना हम ह्यूमन का इंटरवेंशन कम करेंगे, उतना जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे प्लांट उतने सेफ होंगे। Right, sir. So, like, as China is heavily going forward with automation, India में भी बहुत automation आ रहा है अब। चाइना तो बहुत आगे हो चुकी है, अभी तो क्या ही बताऊं। तो कहते हैं, हम उसका 10-20% भी कर पाए तो द थिंग इज दैट अंबर, या मतलब आई डोंट नो, आप इसको रखना नहीं रहे, बट अनटिल अनलेस करप्शन नहीं जाएगा, ये सब बातें ही हैं। Right, sir. Right, sir. I know what you are trying to say, but yeah. So, sir, moving forward, what advice would you give to young engineers and safety professionals who want to challenge I wash culture in organizations? अभी तो जेन जी का, जेन जेड क्या बोलते हैं, जेन Z. जी का जमाना है, तो ऑब्वियसली नया ब्लड है, नई सोच है, उनकी सोच है। तो उनके लिए यही है कि प्रोसेस सेफ्टी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ल्यूक्रेटिव स्ट्रीम है इन केमिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। मैंने पहले भी बताया है कि राइट नाउ इन इंडिया देर इज अ बिग गैप resource versus supply with respect to process safety, competent people। Right. तो अगर वो इस चीज को चुनते हैं और इससे आगे कर जाते हैं, इस जज्बे को लाना चाहते हैं कि हमें लोगों को बचाना है, सिस्टम को सेफ बनाना है, तो ये बहुत ही अच्छी हाई पेड जॉब हो सकती है। तो डेफिनेटली आई विल encourage न्यू इंजीनियर्स, यंग इंजीनियर्स की दे शुड सिलेक्ट प्रोसेस सेफ्टी एज देयर फ्यूचर। Right, sir. And sir, one final question. Any message to India's chemical industry leaders on this topic? Yeah, what would you like to say about that? नॉट ओनली इंडियन इंडस्ट्री लीडर बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप सब लोग जो है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट को इंडिया में रेगुलेटरी लाए, उसको स्ट्रेंथन करें। और इसके लिए जितने भी मार्केट लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब आएगा तो उनको ही फायदा होने वाला है, वही रात को आराम से सो पाएंगे। क्योंकि जब किसी को कॉल रात को 2 बजे कॉल जाता है कि आपकी इस कंपनी में ब्लास्ट हुआ है, तो नो बडी वॉन्ट्स टू टेक दैट। मेरे एक बॉस बोलते थे जब तेरा फोन रात को 10 बजे के बाद आता है ना, मुझे उठाने से पहले ही जो है डर लगने लगता है। Okay. तो मैं बोलता कभी कभी बर्थडे विश के लिए भी करता हूँ सर, तो मैंने नहीं किया कर, तो दूसरे दिन कर दिया कर। So jokes apart, but my sincere request to all leaders कि प्रोसेस सेफ्टी को आई वॉश या आई कैंडी की तरफ ना देखें, उसको गुड टू हैव की तरह ना देखें, उसको मस्ट टू हैव की तरह देखें। Right, sir. बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे प्रोसेस सेफ्टी की पोजीशन 1 ईयर 2 ईयर से खाली है, एंड दे आर नॉट दैट मच वरीड कि ठीक है दिस इज गुड टू हैव काइंड ऑफ पोजीशन। वेर इज अगर साइट हेड की पोजीशन खाली है तो पीछे पढ़ पढ़ के 1.5-2 महीने में लेके आ जाए, Right. बट प्रोसेस सेफ्टी 2-2 साल से खाली है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे ही बच रहे हैं। तो प्लीज लुक इनटू दैट। Right. Thank you, sir, for a very candid conversation with me today. The question which we began with is process safety improvement real or just an eyewash? It doesn't have a simple answer, but what's clear is that commitment must go beyond paperwork and audits. It requires leadership accountability, cultural change, and consistent investment in people and system. For our listeners, the next time your organization runs a safety drill, a HAZOP or an audit, ask yourself, is it about ticking a box or is it truly about saving lives? That's the reflection we want to leave you today. Until next time, stay safe, stay aware, and let's push for the process safety that's real, not just an eyewash. Thank you and have a nice day. Take care. Bye-bye. थैंक यू, Amber, थैंक यू।